Hello guys, today we will discuss about what is petroleum and the process of accumulation, formation and migration of petroleum. First let's start what is petroleum. The word petroleum is come from Latin word means petro plus oleum. Here petro means rock and oleum means oil. It is also called rock oil. हम पेट्रोलियम को रॉक ऑयल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमें रॉक से मिलता है. Now we discuss more about petroleum. In nature occurring liquid, gas, semi-solid or solid mixture of hydrocarbon and non-hydrocarbon molecules. It is in a form of bitumen composite principle of hydrocarbon. It is in the form of gas or liquid in its natural reservoir. पेट्रोलियम एक सिंपल एक क्रूड ऑयल है जो हमें अर्थ की सरफेस के नीचे से मिलता है. ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है. नाउ डिस्कस सम अदर डेफिनेशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम. फर्स्ट इज क्रूड ऑयल. इट इज अनरिफाइंड लिक्विड पार्ट ऑफ पेट्रोलियम. जो हम अर्थ की रस्ट से जो ऑयल निकालते हैं वो क्रूड ऑयल ही होते हैं. नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन at standard temperature and pressure. There is condensate gas in the reservoir but condensated to liquid at the surface. मतलब जो गैस रिजर्वायर के अंदर होती है वो हाई टेम्परेचर बहुत होती है, लेकिन जब अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाती है तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए वे लिक्विड में चेंज होती है. सम पेट्रोल आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड. दीज आर एसफॉल्ट, विटामिन, बैक्स, tar. It is crude oil, asphalt, and it is tar. We know this tar. हाइड्रोकार्बन जो अर्थ क्रस्ट में नीचे होते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर में, ये सब एक क्रूड ऑयल की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड गैस और इसमें सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं. लेकिन जब सरफेस पे आता है टेम्परेचर प्रेशर पे तो ये अपनी फॉर्म में चेंज होते हैं. लिक्विड गैस और सॉलिड सब अपने फेज में चेंज हो जाते हैं. Now we discuss about formation of petroleum. It is the oil and gas that we use today began as microscopic plants and animals in the ocean millions of years ago. After dying, the carbon-based life form would be then sink to the bottom of the ocean, where they build upon each other to form the sediment layers. After more and more biogas begin to pile up each other, the pressure and temperature of the dead organism begin to increase. With time, the carbon life form begin to cook into hydrocarbon. The lower temperature and shallow depth produce heavier oil. Okay, while the higher temperature and oil depth produce natural gases. Means हम ये जो पेट्रोल ऑयल कहाँ कितनी डेप्थ पर निकलेगा और गैस कितनी डेप्थ पर निकलेगी, ये मोस्टली डिपेंड डेप्थ पर नहीं करते, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जो डेप्थ भले ही कम हो लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पर ऑयल की जगह गैस भी निकल सकती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट थ्री स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज डाइजेनेसिस, कैटाजेनेसिस एंड मेटाजेनेसिस. हमें DCM के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार गेट में इनका सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डाइजेनेसिस इन विच नॉर्मल टेम्परेचर यूज दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. इसमें हमारी बैक्टीरिया डीके होती है, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन होती है और जो गैस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड CH4 आर एक्सपेल्ड एंड इन दिस एरिया प्रोड्यूस kerosene or its partly soluble precursors like as humane. Now it is catagenesis in which temperature up to 250 degrees Celsius. Oil generate begin at about 52 degrees Celsius and peak at about 120 to 130 degrees Celsius. If temperature increase and it is 150 to 250, then oil replaced to gas. In metagenesis temperatures become greater than 250 degrees Celsius and in which graphite form. Now we discuss migration of petrol. Once formed, petroleum migrates rock source through the carrier wet to the
रिजर्वायर रॉक्स। इट मीन्स जब रॉक सोर्स में पोरोसिटी और परमेबिलिटी होने के कारण वे जो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे वहाँ से निकलकर रिजर्वायर रॉक में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल उसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। The liquid and gaseous migration pattern depend on the density and pressure difference in the environment, and the flux of the hydrocarbon is closed by a cap due to its low porosity quality. It is under in trap we discuss about in the shale rocks in next slides. And different stratigraphic formation allow for difference in hydrocarbon reserve locations and quantities and qualities. Now we discuss accumulation of petrol, in which first thing is trap. Once the oil has made its way from the source rock into a porous and permeable unit, usually sandstone or crystalline carbonate rocks, it will migrate upward through the water filled pore space in the rock due to effect of buoyancy. Trap means if the oil encountered an impermeable layer of rock that prevent further upward migration, it will trap in the porous reservoir unit. And system ये जहाँ जो हमारा ये पहले वाटर होता है उसके ऊपर ऑयल होता है, फिर ये हमारा गैस होता है, ठीक है। देन पर इनपरमेबल रॉक, इनपरमेबल रॉक का क्या यूज़ होता है, ये मतलब ये गैस को और ऑयल को ट्रैप करके रख लेते हैं। अगर ये इनपरमेबल रॉक ना हो तो गैस और ऑयल हमारी अर्थ क्रस्ट में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी ये एक जगह स्टोर नहीं होंगे, तो हमें कहीं भी ऑयल और गैस नहीं मिलेंगे। तो मतलब अगर हमें इम्परमेबल रॉक जहाँ मिल रही है उसका बहुत फ़ायदा है। इम्परमेबल ये कोई जैसे फॉल्ट भी हो सकता है, ये फॉल्ट की वजह से यहाँ ये रिजर्वायर में ये स्टोर हो गए ऑयल और गैस। ओके, अब हम एक बार समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं, और रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉक से हमें मिलता है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो मिलियंस ऑफ एयर वो जो डायनासोर थे उनके मरने के बाद फिर और टाइम बीता, उनके ऊपर मट्टी आई, फिर टाइम बीतता गया तो वे नीचे जाते गए, और जितने नीचे जाते गए उनका उतना टेम्परेचर बढ़ता गया, और एक टेम्परेचर पर ऐसा हुआ कि उसमें हाइड्रोकार्बन्स निकलने स्टार्ट हो गए, और वे फिर उनके पोरोसिटी और परमेबिलिटी के कारण वे रिजर्वायर रॉक में जाने लगे, ठीक। ये हो गया माइग्रेशन। फिर एक्युमुलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फिर जहाँ भी उन्हें इम्परमेबल रॉक मिली वहाँ तक वे गए और वहाँ पर जाकर स्टोर हो गए। बस सिंपल हमने यहाँ तक पढ़ा, और यहाँ से अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।